हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एक मिनी टेस्ट होने वाला है आज की वीडियो में। ओके, और किस पे होने वाला है वो आप अगर वीडियो करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, दो तीन चीज़ें मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहले, हर क्वेश्चन के बाद में 10 सेकेंड का टाइमर है। ओके, और जिसको ऐसा लगता है कि वीडियो फास्ट जा रही है तो वो पॉज करके फिर अटैम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन, और जिसको ऐसा लगता है कि स्लो जा रही है तो वो फास्ट करके अटैम्प्ट कर सकता है ना। तो वो दोनों ऑप्शंस आपके फ़ोन में है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ मुझे ये बतानी थी, शुरुआत में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर्स नहीं बताए, ताकि आप फेयर होके वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो। उसके बाद मैंने लास्ट में आंसर्स तो दिए ही हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिए। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि शुरुआत में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस डाले, आंसर्स मैंने बाद में डाले हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि आंसर हम गूगल से भी कर लेंगे, लेकिन बेटा जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो वीडियो आपको देखनी ही देखनी है। और हर एक्सप्लेनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन फ्री हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। Our first question of the day is, BCCI has decided to cancel the Ranji Trophy 2020 to 2021 season for the first time in game's history. The championship was first held in which season? And your time starts now. Day on 1st February in 2021, which edition of the Raising Day was celebrated by ICG, that is Indian Coast Guard? And your time starts now. Our next question is, the first of its kind botanical garden named Shivalik Arboretum has been inaugurated in which city of India to preserve 200 species of trees found in the Shivalik range of Himalayas? And your time starts now.
Our next question is, according to the WHO, which nation has the highest number of new cases of leprosy in the world annually? And the options are as follow. And your time starts now. टाइमर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी डाल रखी है, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना. So your time starts now. When is the World Wetlands Day observed all over the world? And the options are as follow, and your time starts now. Our next question is, who is the author of the book Yes Man, the Untold Story of Rana Kapoor? And the options are as follow, and your time starts now. Question is, National Waterways 2 is on which of the following river? And the options are as follow, and your time starts now. Our next question is, Michael Somare has passed away recently. He was the first Prime Minister of which country? And the options are as follow, and your time starts now. Our next question is, which of the following organization has released its report titled The State of School Feeding Worldwide? And the options are as follow, and your time starts now. Our next question is, who took charge as new chairman of the NCSC, that is National Commission for Scheduled Caste? And the timer starts now. Our next question is, which state government has brought an ordinance that will give co-ownership rights to the women in the ancestral property of their husband? And the options are as follow, and your time starts now. Which Indian naval ship reached Abu Dhabi in UAE to participate in the Naval Defense Exhibition and International Defense Exhibitions? And the options are as follow, and your time starts now. तो गाइज, अब तक आपने करा था ये क्वेश्चन वाला पार्ट. अब चलेंगे इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पोर्शन में. एंड बिलीव मी गाइज, हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें आपको हर क्वेश्चन में 5 से 6 न्यू क्वेश्चन मिलेंगे.
और इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, ताकि आपको लगे कि जो आपने ये 20-30 मिनट दिए हैं वो आपने यूज़ करे हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन करके स्किप नहीं करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर्स. So our first question is, BCCI had decided to cancel the Ranji Trophy 2020 to 2021 season for the first time in games history, right? So मैंने आपसे ये पूछा था कि इनका जो चैम्पियनशिप था वो फर्स्ट कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1934 टू 1935, है ना। और बी हो जाएगा इसका आंसर। और अब हम बीसीसीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बीसीसीआई ने ऐसा जो ये अपनी कैंसिल करी है रणजी ट्रॉफी, वो 87 ईयर्स में पहली बार हुआ है ऐसा। बहुत बड़ी बात होती है ना। और अगर मैं बताऊं, इसके जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो कौन है? जय शाह हैं। और जय शाह कौन है? सन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर किसी को पता हो तो? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे है। और बीसीसीआई कब फाउंड हुआ था? 1928 में, ठीक है। और जो बीसीसीआई है ना, उसका जो बोल सकते हैं चैम्पियन कौन है? एक होता है ना, कोई टीम होती है जो बार बार उस ट्रॉफी को जीतती है, तो ऐसे ही चैम्पियन जो है बीसीसीआई का बोला जाता है बॉम्बे को, जिसको 42 टाइम से टाइटल मिल चुका है। मतलब वो 42 टाइम वो चैम्पियनशिप जीत चुकी है। तो कितनी बड़ी बात होती है, आप देख लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी बीसीसीआई के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our second question is, the government of India has inked Year of the Environment partnership with which country for the year 2021? इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके एक गठबंधन किया, एक एग्रीमेंट किया है, एक पार्टनरशिप किया है, किस चीज़ के लिए? कि वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्रांस, ठीक है। अब हम कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज है एक, जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 क्या है? इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एयर एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पे हुई थी? जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। उसके बारे में अब हम फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, और करेंसी क्या है? यूरो है। प्रेसिडेंट का आप नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे फ्रांस के, ठीक है। और वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की। वरुण क्या है? ये चीज़ें मैं पहले भी करा चुकी हूँ, पर रिवीजन करा रही हूँ। वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस की। उसके बाद गरुड़ क्या है? गरुड़ भी पढ़ा रखा है। गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। और शक्ति क्या है? शक्ति है आर्मी एक्सरसाइज, आर्मी। ये नोट डाउन कर लो कहीं पे। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण है नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ है एयर एक्सरसाइज, और शक्ति क्या है? आर्मी एक्सरसाइज। और एक्स डेजर्ट नाइट 21 कहाँ पे हुआ है? जोधपुर में, ठीक है। ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है, एयर एक्सरसाइज है ये, ओके। उसके बाद यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, which country has decided to award the contract for construction of 679 megawatt Lower Arun hydropower project to India सतलुज जल विद्युत निगम? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अवार्ड देने की सोची है, किसको? इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम को। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है? 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज़ नेपाल। तो नेपाल में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्शन में हेल्प किसने करी है? सतलुज जल विद्युत निगम ने। और दिस प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडिंग 21.9% ऑफ जनरेटेड एनर्जी फ्री टू नेपाल। तो बहुत बड़ी बात है।
और ये जो लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो ये बात हो रही है, ये कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट होगा? रिवर अरुण में, ठीक है, जो कि ईस्टर्न नेपाल साइड में है कहीं पे। और अगर हम नेपाल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, और कैपिटल सबको काठमांडू पता ही होगी। और करेंसी क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो सतलुज जल विद्युत निगम हमने अभी पढ़ा, इनके जो चेयरमैन है वो NL शर्मा है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम का शिमला, हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, which of the following has become the first metro to use UV rays to sanitize the train कोचेस? तो इसमें आपको ये बताना था कि कौन सी ऐसी मेट्रो बन चुकी है पहली जिन्होंने अपने ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए क्या यूज़ करा है? यूवी रेस, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लखनऊ मेट्रो, ठीक है। अब हम कुछ मेट्रोज देख लेते हैं जो न्यूज़ में थे। तो अभी हमने फर्स्ट मेट्रो तो देख लिया जिन्होंने क्या यूज़ करा है? यूवी रेस को। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे है? कोलकाता में है, ओके। और हैदराबाद मेट्रो रेल क्या बन चुकी है? सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन चुकी है इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एयर बुक? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सेथ रॉगन। अब हम कुछ बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही थी या फिर इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट। लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट के ऑथर कौन है? दलाई लामा, नोट डाउन कर लो ये। उसके बाद नेक्स्ट बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट, DISSENT, ठीक है, वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसके ऑथर कौन है? रोमिला थापर, ओके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बुक है उसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है RAMCHANDRA, रामचंद्रा गुहा, GUHA, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नोट डाउन कर लो। Our next question is, every year the ICG, that is Indian Coast Guard, celebrates their raising day on 1st February. यहाँ पे तो क्वेश्चन में मैंने दे दिया है कि 1st February को सेलिब्रेट करते हैं रेजिंग डे, तो क्या पता क्वेश्चन में डेट ही पूछ ले कि कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ये कौन सा एडिशन था जो 1st February 2021 में इन्होंने सेलिब्रेट करा ना रेजिंग डे, इनका कौन सा एडिशन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 45। अब हम देख लेते हैं ICG के बारे में जो न्यूज़ में रहा हो। तो जो ICG है दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये इनका कौन सा रेजिंग डे था? 45th था, ये हमने अभी देखा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? February 1, 1977 में, ओके। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ICG के, देखते हैं कितनों लोगों को पता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये तो सबको ही पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। Next question is, first of its kind botanical garden named Shivalik Arboretum has been inaugurated in which city of India to preserve 210 species of trees found in the Shivalik range of Himalayas? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि जो शिवालिक आर्बोरेटम है, ठीक है, वो क्या है? एक बॉटनिकल गार्डन है। तो ये कौन से सिटी में है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया बेसिकली, जो 210 स्पीशीज़ होते हैं ट्रीज़ के, वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मुझे लगता है सबका ही सही होगा, क्योंकि शिवालिक एंड ऑल से तो आपको पता चल ही रहा होगा, उत्तराखंड है ना। तो उत्तराखंड में भी कहाँ पे? नैनीताल में। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड किन चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहा था। तो इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे डेवलप हुआ था? हल्द्वानी, नैनीताल में। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट मोस गार्डन कहाँ पे बिल्ट हुआ था? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ठीक है। पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी, पहला मोस गार्डन MOSS, मोस गार्डन भी कहाँ पे हुआ था? कितनी प्यारी हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है। तो MOSS मॉस गार्डन भी पहला कहाँ पे बिल्टअप हुआ था? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही, उत्तराखंड के, ठीक है। उसके बाद
जो एक फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं उत्तराखंड के। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड का है, ठीक है। हरेला फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड का ही है। गैरसैंण जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वो अब समर कैपिटल है उत्तराखंड की, ये सबको ही पता होगा। और इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क भी कहाँ पे डेवलप हुआ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ही, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता हो तो यहाँ पे फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी डेवलप हुआ है उत्तराखंड में ही, तो इसलिए हमारा उत्तराखंड इतना फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। Next question is, according to WHO, which nation has the highest number of new cases of leprosy in the world annually? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लेप्रेसी रेट सबसे ज़्यादा है? तो वो हो जाएगा इंडिया में, इसका आंसर। और अब हम WHO के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो WHO के बारे में देखने से पहले हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे फोकस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं 7 अप्रैल को, और 2021 की थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, ठीक है। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। और कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को बनाते हैं। अब हम WHO के बारे में देख लेते हैं। तो WHO की फाउंडेशन कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। किसका? WHO का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, TEDROS, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। इथोपिया के हैं ये। और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, वेरी प्राउड, है ना, इंडियन है, ठीक है। और ये कौन है? डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इसका थीम क्या है 2021 का? वेटलैंड एंड वाटर। तो ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट भी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who is the author of the book Yes Man, The Untold Story of Rana Kapoor? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन सी लाल। 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही हैं, जो मतलब रिलीज़ हुई थी। और 2020 में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हुई थी, पर अभी हम सारी बुक्स तो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल वाटरवेज 2 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो नेशनल वाटरवे 2 कौन से रिवर में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्रा। Next question is, Michael Somare has passed away recently. He was the first prime minister of which country? So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पापुआ न्यू गिनी। और जो माइकल सोमारे थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो हमने देख लिया। और इनको और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और क्यों बोला जाता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। Next question is, which organization has released its report on title The State of School Feeding Worldwide? तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WFP, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो इन्होंने रिलीज़ करी है। अब हम WFP के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल हैं डेविड बैस्ले, BEASLEY, ठीक है। और इनको अवार्ड भी मिला था, नोबल पीस प्राइज़। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे किस चीज़ में? टू कॉम्बैक्ट हंगर, प्रमोट पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो हंगर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करी थी, हेल्प करी थी लोगों की, तो इसलिए इनको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। कब? 2020 में, ऑफ कोर्स सी बात है। और ये जो WFP है, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है।
Next question is, who took charge as new chairman of NCSC? NCSC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो कौन है इनका न्यू चेयरमैन? ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला. तो विजय सांपला क्या है? चेयरमैन है NCSC के. अब NCSC के बारे में देख लेते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. किस चीज़ के लिए वर्क करता है? शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए वर्क करता है, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, फाइनेंशियली वो स्टेबल हों, इकोनॉमिकली मतलब बोल सकते हैं फाइनेंशियली हेल्प करता है शेड्यूल कास्ट की. ठीक है, अब NCSC की फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 Feb 2004. काफ़ी रिसेंट है ना. और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, अक्सर हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिया जाता है, और चेयरमैन वगैरह भी. और चेयरमैन हमने अभी देख ही लिया, विजय सांपला, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोरोना वायरस वैक्सीन थ्रू कोवैक्स वैक्सीन शेयरिंग इनिशिएटिव. तो पहली कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना. घाना पहली कंट्री थी टू रिसीव कोरोना वायरस वैक्सीन थ्रू कोवैक्सीन. ओके, तो घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा, ACCRA. और करेंसी क्या है? CEDI. तो कॉपी में ये सब नोट डाउन कर लो, करेंसी वगैरह भी पूछ लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस दैट विल गिव को ओनरशिप राइट्स टू द वुमेन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड. पहले हम क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं. को ओनरशिप राइट्स का मतलब क्या है? जैसे अभी कोई हस्बैंड है, राइट, तो उसकी कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उस पर राइट किसका होता है? उसके सन का होता है ना. लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि उस लैंड पे इक्वली हकदार कौन होगी? उसकी बीवी होगी. ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है. ठीक है, और ये सब करने से क्या होगा? जो ये स्टीरियोटाइप वगैरह है, जेंडर इनइक्वालिटी, ये कम होगी आई थिंक. और ये बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं स्टेप लिया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो द डॉटर विल गेट एक्सेस टू ओनरशिप ऑन द लैंड ओन बाय देयर फादर. अभी तक क्या होता था? जो फादर है उसके लैंड पे किसका हक होता था? लड़कों का होता था, है ना, सन का, ऑब्वियसली बात है. लेकिन अब क्या होगा? उनकी डॉटर का भी होगा. और ऐसे ही एक लैंड है किसी हस्बैंड की, तो उसमें किसका हक होगा? उसकी बीवी का भी होगा उतना ही. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन नेवल शिप रीच्ड Abu Dhabi in UAE to participate in the Naval Defense Exhibition that is NAVDEX 21 and International Defense Exhibition that is IDEX 21. तो कौन सी ऐसी नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है नेवल डिफेंस में अबू धाबी जाके? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS प्रलय. ठीक है, एक होप मिशन था, ठीक है, मार्स के लिए. तो वो किसका था? UAE का ही था. और UAE पहली ऐसी अरब कंट्री है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, और UAE की करेंसी क्या है? दिरहम. स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DIRHAM. तो दिरहम क्या है? इसकी करेंसी है. ठीक है, और UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी. ओके, so thank you so much guys for watching this video. If you liked this session, then do share and subscribe to our channel, and don't forget to share this video.